former Executive Director, Tata, Dr. Alexander, Dr. Bharat Kashyap, Dr. Padam Shri, Dr. Anil Prakash Joshi, Dr. Nitin Seth, IFC, PR, Dr. Durgesh Pant, DGU Post, Mr. Meenakshi Sundaram, Padam Shri N.K. Ramji, Padam Shri Dr. Anup Saha, Padam Shri Pritam Bardwan. साक्षी राणा कृपया बैक स्टेज आ जाएं अर्जेंटली। जल्दी हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि पहुंचने वाले हैं, तो कुछ ही क्षणों में बस हमारे बीच होंगे। हम इंतजार कर रहे हैं। दोबारा कहूँगा मैं कि यूपीएस की पहाड़ियों से गूंजती है एकता की पुकार, हिल कॉन्फ्रेंस बन जाता है विकास और विश्वास का मंत्र। बहुत स्वागत, अभिनंदन। Thank you, Sani sir. If we have our Honorable Governor of the State of Uttarakhand, Lieutenant General Subhash with us, I request all of you to kindly rise for the national. When Uttarakhand had a deep-rooted connection to strengthen the Himalayan society by creating sustainable solutions to the unique challenges faced by the Himalayan region. We are extremely fortunate to have received the blessing of His Holiness, the Dalai Lama, with the wishes for the success of Himalaya Call 2025 in form of this message which I feel privileged to recite. The Honorable Governor of Uttarakhand, it's our proud privilege, sir, that we will continue to receive your blessings. I welcome you, sir, on behalf of the entire family of UPES. I also welcome all the international and national delegates, experts, speakers, thought leaders who have joined us today to make this event enriched and fruitful. I welcome you all, sir and madam, those who are taking part in the various panel discussions and other activities, core of bottom of our heart to UPS to this event. Welcome. I also welcome all the dear students, the future of our nation and society, who are actually joining us in this event with a dedication and resolve that they will contribute their might in making sustainability a practice in India. I welcome you all. I welcome you of discussions, deliberations, and we are very certain, sir, that with your blessings we will come out with an actionable. Vice Chancellor, Mr. Manish Madan, our registrar, और यहाँ पे आए हुए समस्त पार्टिसिपेंट्स, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। हिमालय कॉलेज 2025 is not a summit, is not only a conference,
This is our gratitude towards the guardian who has been protecting us since thousands of years. Sir, I am very happy to inform you that we are going to have 25 plus parallel sessions, 128 speakers, 17 international speakers, and nearly 1,600 participants in both the board. We have sessions on cultural wisdom of Himalaya for sustainable future, on women empowerment, on AI and machine learning for Himalaya, nature-based solution, eco-tourism, environmental justice, farming and agriculture, and so on. Sir, I am really happy to inform you that Himalaya Calling 2025 is blessed with 11 Padma awardees. I am grateful of Dr. V.C. Thakur Sahab, Padma Shri awardee Dr. Premchand Sharma ji, Padma Shri awardee Dr. Kalyan Singh Rawat ji, Padma Shri awardee Dr. Balendra Prakash ji, and all Padma Shri awardees for next 3 days में अलग-अलग सेशन में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और मैं एक बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूँ कि तराजू का वही पलड़ा भारी होता है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। सर, we have Dr. Anup Shah, पद्म भूषण डॉक्टर जे.पी. तलवार साहब जो नेक्स्ट ईयर 99 ईयर के हो जाएंगे, एंड आवर ओन पद्म भूषण डॉक्टर प्रकाश जोशी जी जिनके प्रेरणा स्रोत से और हु इज आवर मेंटर फॉर द हिल एंड हिमालय कॉलेज। सर, tomorrow we are going to have a panel discussion with 30 plus NGOs, national and international NGOs. Dr. Badri ji is here from Chirag, Chinmay is here from NF, and tomorrow more will join. And our main purpose is how to synchronize our efforts for the development of Himalaya so that it can be visible on ground. I am very grateful of John Cassilis, Executive Director of Global Rise, and he has been running an internationally known program from farm to plate. I am also thankful of Mr. Steve, who is from Millennium Institute, USA. Steve, where are you? Okay, thank you. So he is a policy advisor to the United Nations on the Sustainability Development Goal. We have Mr. Faraz and Mr. Wengler, who are working on the international organization on wildlife protection and interaction of human and wildlife. I invite you all, you can always interact with them and have a collaboration with them. Sir, at last I just want to say that on 11th September we are going to conclude our 7th session with the presence of DG UPOS, Pansar and Padma Bhushan Anil Prakash Joshi ji. And we might be concluding on 11th of September, but this is the new beginning for the coming year. I also want to inform you, sir, we have not printed any booklet or any flexi or any program, and this is how, at an estimate, we saved 1,000 liters of water and many trees. So all the details are available on hillupes.com, HILLUPES.com. We are giving the number, we are giving the mail, you will get the response within 24 hours, within 24 minutes, I'm sorry. And then one more thing, sir, I want to say thank you, Dr. Ram. We have not taken any fees from any participant. This is all sponsored by UPS. आपका यहाँ होना सब में प्रेरणा भी देता है और मैं आपसे मिला भी तो एक भावनात्मक शक्ति भी देता है कि हमें हिमालय के लिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जय हिंद। I think this is a very special moment for each one of us. पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही एक सुंदर क्षण है। इसका जो टाइटल रखा है आज के इन 3 दिनों का जो सेशन है, हिमालयस कॉलिंग। कॉलिंग इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। कौन बुला रहा है,
कौन आवाज दे रहा है, एंड व्हाट इज द कॉल, ब्रह्मांड की कॉल क्या है, विश्व की कॉल क्या है, नेचर और प्रकृति की कॉल क्या है, वो हमारी आत्मा को क्या बताना चाहते हैं। आज के दिन में अर्थ का पुकार क्या है, जो क्लाउड बर्स्ट है वो क्या बोल रहा है, जो नदियां उफान में है वो क्या बोल रही है। ये जो शब्द है अर्थ, EARTH, वो जो कान से शुरू होता है वर्ड ईयर, वो कह रहा है हमको सुनो। कुछ एक प्रश्न है जो पूरा ब्रह्मांड हमसे पूछ रहा है। ब्रह्मांड कह रहा है कि सुन रहा है ना तू, वो तो बोल रहा है, वो तो क्लाउड बर्स्ट से आवाज दे रहा है, वो तो जो पानी का आवाज है वो आ रही है, लेकिन क्या हम सुन रहे हैं। प्रभु कह रहा है, समझ रहा है ना तू, आर यू अंडरस्टैंड। आई एम वेरी हैप्पी, ये जो टाइटल आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को दिया है HILL हिल, उसमें जो सबसे मुख्य चीज है लर्निंग, एंड नेक्स्ट L इज फॉर लीडर। व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न, हाउ आर वी गोइंग टू बिकम लीडर इन दिस कैंपेन टू प्रोटेक्ट, पूरे संरक्षण के लिए। व्हाट आर यू गोइंग टू डू। आई एम वेरी हैप्पी, ये जो 3 दिन का हमने निश्चय लिया है, संकल्प लिया है कि इसका अध्ययन करेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रिलेट करके हम लोग जो अध्ययन करेंगे। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। ये जो 3 दिन, जब 3 की होती है तो ऐसा लगता है कि शिव जी के त्रिशूल का एक हुक्म हुआ। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो प्रकृति की आवाज है, जो मानवता की आवाज है, हाल ही में पूरे विश्व ने कोविड की भयंकर बात सुनी थी। कोविड में हमने यही सबक सीखा, दैट वी हैव टू वॉक बैक टू द नेचर। मुझे आज बहुत खुशी है कि हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने हमको संदेश दिया। उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि UPAS के परिवार में हम सब ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि हम किस प्रकार अपनी धरती का, अपने प्रकृति का, अपने ब्रह्मांड की उसको समझें। ये और जो हिज होलीनेस दलाई लामा जी कहते हैं वो सचमुच मानवता की और ब्रह्मांड की सबसे गहरी पुकार है। मुझे एक अवसर मिला, मैं बोध गया, वहां पर हिज होलीनेस जी को मिलने का अवसर मिला। उन्होंने मेरा हाथ ऐसे 10 मिनट तक पकड़ा, आशीर्वाद दिया, तो मुझे ऐसे लगा कि उनसे बढ़कर कोई भी डिवाइन और स्पिरिचुअल आत्मा नहीं हो सकती। जो उन्होंने ये मैसेज दिया, ये उनका एक हमको इंस्ट्रक्शन है कि अपनी जिम्मेवारी समझिए। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि ये जो वर्ड हिमालय है, ये HIM, हिम, पुरुषों के नाम से क्यों शुरू हुआ, हर से क्यों नहीं शुरू हुआ। फिर लगता है थोड़ा धैर्य रखो, HI के बाद में MA माई आती है। तो ये तो ऐसा लगता है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप, हमारे पूरे जीवन का जो आधार है उसको समझने की जरूरत है। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम इस विषय के बारे में उत्तराखंड से बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की पहचान, संस्कृति, जो जीवन धारा है वो हिमालय से जुड़ी। आज मुझे इस बात नोट करके बहुत खुशी है कि 11 पद्मश्री, पद्म विभूषण आज हमारे साथ में इस अभियान के साथ जुड़े। एंड आई एम एक्सीडिंगली हैप्पी व्हेन दिस होल थॉट वाज
shared with everyone. Number of students who have enrolled for this topic, that's a phenomenon. पहले थोड़ा शक था कि वर्ल्ड हिमालय की रिसर्च के बारे में कितने जुड़ेंगे, बट इट इज सरप्राइज ईच वन ऑफ अस. मैं आपको पूरी लीडरशिप को, यूपीएससी की लीडरशिप को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने इतने सुंदर टॉपिक को चूज किया है. जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इनके नाम में RAI है. अगर आर को छोड़ दे तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. I'm definite this research will get added on to AI, technology, modernization and transformation. और इनके जो वाइस चांसलर साहब, उनका तो नाम ही राम से शुरू होता है. और देखते हैं कि एक ऋषि मुनि की कहानी दिखाई दे रही है. और मुझे बहुत खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी की लीडरशिप ने इस टॉपिक को चूज किया है. अगर मैं पूरे हरेक शब्द जो इस विषय के साथ जुड़ा है और यूनिवर्सिटी ने एक मार्ग अपने आप के दिखाया है, उसके अंदर में जो पहाड़, नदियां, जंगल, हवा, हरियाली, आध्यात्मिकता, इन सबको जोड़ा है. मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें पूरे ब्रह्मांड के हर एक विषय को जोड़ा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉल. कॉलिंग 2025. ये 2025 में कॉल कहां से आया, ब्रह्मांड ने कॉल किस चीज का दिया. इट इज इंपॉर्टेंट दैट एट द एंड ऑफ इट हम पूरा अध्ययन करने के पश्चात में अपना संकल्प बनाएं कि हमने क्या किया. एक्चुअली जो मानवता का संकल्प है, अगर आपकी आत्मा ने उस संकल्प को सीख लिया, उसको लीडरशिप के साथ में जोड़ दिया, then the task will be absolutely easy thereafter. हमको ढूंढने समाधान. हम क्यों पहाड़ों से, जंगलों से छोड़कर, क्यों हम अर्बन जंगल्स के अंदर जो पूरे आर्टिफिशियलिटी के ऊपर में बसे हुए हैं, जो सीमेंट, आर्टिफिशियल, अननेचुरल, हम क्यों नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ क्यों नहीं जाते. आई थिंक ये जो समाधान निकलेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट एंड डू इट इन अ वे विच इज सिंपलर फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड. जो 8 बिलियन मानवता पूरी धरती के ऊपर में है, दे वांट सॉल्यूशन आउट ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग टुडे. आप 3 दिन के अंदर में संवाद करेंगे, सवाल जवाब करेंगे. ये भी कहा जाता है कि क्वेश्चन इज द मदर ऑफ विजडम. 1000 सवाल है अपने आप से, क्यों हम गलत रास्ते पर भटके. और जो स्टूडेंट, और स्टूडेंट वर्ड भी कितना सुंदर है, STU और बाद में डेट, एक असर, एक इम्पैक्ट, एक इफेक्ट, एक रिजल्ट, किस प्रकार से हम मानवता को वो दे. एक्चुअली ये जो विषय है, ये बहुत संवेदनशील, गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेमिनार है, ये सम्मेलन एक हिस्टोरिक सम्मेलन बनने वाला है. ये हमारी सबसे गहरी सोच का एक विषय है. क्यों जो ब्रह्मांड, प्राकृतिक, प्रभु ने जो हमको आशीर्वाद किया, क्यों हम उसको भूल गए. और मुझे बहुत खुशी है कि जिस प्रकार से हम सब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, जिसके अंदर में द इंटेलेक्चुअल ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, साइंटिस्ट, प्लानर, स्टूडेंट, और आई एम वेरी हैप्पी दैट सो मेनी NGOs आर जॉइनिंग यू. दे ऑल्सो वांट टू डू सच्ची सेवा मानवता की. किस प्रकार हम अपना असली जो रूप है, जो जीवन जीने का ढंग है, उसको कैसे हम ढूंढें. मैं
यूपीएससी और हिल, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक्चुअली आपने हमारी आत्मा की सुनी, आपने हर प्राणी की सुनी। मुझे बहुत प्रसन्नता भी है, आई एम एक्सीडिंगली हैप्पी एंड थ्रिल्ड, और गर्व भी, आई फील एक गर्व की अनुभूति हो रही है। ये सिर्फ आयोजन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हिमालय के एज रिलेटेड टू हिमालय, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक श्रद्धा, संवेदना और संकल्प का प्रतीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस चीज का सच्चा अध्ययन करेंगे तो विल बी ए चेंज पर्सनैलिटी बाय आवर ओन सेल्फ। कभी कभी ऐसा लगता है वो क्या कारण है कि गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, महात्मा गांधी जी, टैगोर जी, क्यों विवेकानंद जी यहां आए, क्यों शंकराचार्य जी यहां पर आए, क्यों ये सब हिमालय से प्यार करते, वो क्या ढूंढ रहे थे हिमालय के अंदर, हमको वो दोबारा ढूंढना है। We have to find what is the secret of life in the Himalayas that they enjoy. हमारी इस वक्त में सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हम हिमालय की संरक्षण, हाउ टू contribute towards the conservation, protection, safety. क्योंकि जब पहाड़ टूटता है तो अपने आप से वो एक मैसेज दे रहा है। क्या हम वो मैसेज अपनी आत्मा से सुन रहे हैं? आई थिंक दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। एक्चुअली पूरे भारत का, उत्तराखंड का जो हृदय है, आत्मा और संस्कृति, ये हिमालय के गोद में ही बसी है। ऐसे हम कश्मीर को अपना मुकुट कहते हैं, उसी प्रकार अगर हम हिमालय को देखें, 2500 किलोमीटर डेप्थ, 250 to 400 किलोमीटर, ये हमारी सचमुच से हमारा हृदय और आत्मा है। और इफ यू गो इनटू द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, संत कवियों ने, उन्होंने जो रिसर्च की थी, वी हैव टू रिकनेक्ट दैट। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो वेद, पुराण, उपनिषद हैं, जो भारत की सभ्यता, संस्कृति, जो ज्ञान, विद्या पहाड़ों का था, प्रकृति का था, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस, साइबर, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब के साथ में कैसे मिलाएं, इन दोनों चीजों को किस प्रकार हम इकट्ठा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप सच्चा शोध करेंगे, सच्चा रिसर्च करेंगे, तो यू विल बी एबल टू फाइंड दैट सस्टेनेबल मॉडल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर इफेक्टिव शेयरिंग एज ए मैनकाइंड। ऋग्वेद में बहुत सुंदर लिखा है, हिमालयन हिमवान पर्वतो महान। दिस महान वर्ड इज गिवन टू हिमालय के पर्वतों। महान कोई छोटा वर्ड नहीं, बहुत बड़ा विशाल शब्द है। और ये महान हमारे ऋग्वेद में कहा गया, यस्य नित्य धारा प्रबंध, मतलब है हिमालय में महान पर्वत है जिसकी शाश्वत धाराएं धरती को जीवन देती है। एक्चुअली लाइफ फ्लोज आउट ऑफ द हिमालय। देयर इज नॉट अ सिंगल लेसन ऑफ लाइफ व्हिच यू कांट लर्न फ्रॉम हिमालय। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के युवा, आज की अमृत पीढ़ी, इस अमृत काल के अंदर में आपने चूज किया है
hill as a topic, Himalayas as a topic for your research and development. आप देखेंगे जैसे आप इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ते जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी भी चेंज हो जाएगी. When you look at the Himalayas, जो आपके अंदर में पेशेंस और धैर्य उठता है, वो अपने आप से बिल्कुल अलग है. देखिए विशालता हिमालय से, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा, यमुना, ये सब जीवनदायी नदियां. What proportion of humanity live beside them? This is a very emotional topic. I also get emotional when I talk about it. ऐसा लगता है कि हर एक चीज की जो कुंजी है, ही है. Actually, this is the center of gravity, the game changer, the turning point for each one of us. But can you identify this? आपके रिसर्च के अंदर में can you identify this? कभी कभी डर लगता है. आज के इसी क्षण के ऊपर में आप कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, आप जो नेचर मैसेज दे रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग, एक्चुअली WARM वार्म नहीं है, WARN है, वार्निंग है. हम सब इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि ये वार्निंग है ब्रह्मांड की तरफ कि संभाल लीजिए आप. जो आपको उपहार दिया है, देन दिया है, वरदान दिया है, उसको किस प्रकार आप देख रहे हैं. मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस विषय के अंदर में हिमालय के साथ एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य है, इसको मिलकर SDG को पूरा करना है. आपकी एक सोच, व्हाट यू थिंक, आपकी एक थॉट, आपने कभी सोचा है, ये जो थॉट वर्ड है TH और उसके बाद में क्या आता है, ऑट. एक बार आपने सोच लिया, then it ought to happen. आपके जो आइडियाज हैं, आपकी जो धारणा है, जो आप एक लिखेंगे, WRIT, वो पूरी मानवता के लिए मानी जाए. पर इंपॉर्टेंट क्या है, जो संवाद, जो शोध, जो रिसर्च, जो स्टडी करेंगे, उसके अंदर में एकदम प्योरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर में गहराई होनी चाहिए, उसके अंदर लगन और पैशन होना चाहिए. मेरे को तो आप सबको देखकर ऐसा नशा आ रहा है, क्योंकि आप अपनी आत्मा से सुन रहे हैं. ऐसा लग रहा है, आई कैन सी दैट वाइब्रेशन. आई एम डेफिनेट अबाउट इट दैट यू आर गोइंग टू चेंज द वे वी लुक एट द एंटायर गैम्बिट of our relationship with the Himalayas. एक बात पक्की है, जो एक इंसान के अंदर में दिव्यता, भव्यता होनी चाहिए, उसका जो देव तत्व है, वो हमारी संस्कृति, वो हमारा प्राकृतिक ही प्रदान करता है. If you want to have divinity and spirituality within yourself, it's best to get related to the Himalayas, पर्वतों से, जंगलों से, नदियों से, because they are the biggest example of selflessness. वो मानवता की किस प्रकार से सेवा करते हैं. दिल तो कर रहा है मैं और भी बोलूं, जिस प्रकार आप सुन रहे हैं. लेकिन मेरी वाइफ ने बोला था आने से पहले कि बहुत ज्यादा सब विद्वान हैं, वो जानते हैं. एंड इन योर बायोलॉजी आई कैन रीड योर इन्वॉल्वमेंट इन द सब्जेक्ट. हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंज हैं, पूरी धरती का टेम्परेचर इज गोइंग अप, क्लाइमेट इज अंडर ए चैलेंज, क्लाइमेट पैटर्न इज चेंजिंग. प्रकृति की हर एक
शख्सियत चेंज हो रही है। क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं? वो जो दृश्य था मुखबा मंदिर से, जिस प्रकार से क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिस प्रकार कटे हुए पेड़ उस धार के साथ में आए, वो एक मैसेज दे रहे थे। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनने से दुख और पाप का नाश होता है। लेकिन जो कॉलिंग है, अर्थ को सुनना, पहाड़ों को सुनना, जंगल को सुनना, उस सुनने से जो दुख पाप मिटेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बड़ा गिल्टी फील होता है एज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पेड़ों के अंदर कटाई, नदियों का प्रदूषण, कंक्रीट के जंगल, जो हमारी अस्तित्व पर, आज बीइंग के ऊपर में जो प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, यू फील गिल्टी अबाउट। हमको समझना होगा कि प्रकृति ने जो हमको दिया है, उसी के स्थान पर रहने देना आवश्यक है। कोविड ने तो हमको सिखा दिया, जब वेंटिलेटर की याद आई। हमारी सांसें तभी सुरक्षित हैं जब वायु शुद्ध हो। हमारे तो हॉट डॉगों ने, क्या बोलते हैं, हॉट डॉग बोलते हैं ना, ये जो आर्टिफिशियल ईटिंग पैटर्न ऑफ लाइफ है, उन्होंने तो हमको सबक सिखा रहे हैं कि भोजन तभी जीवनदायी होगा जब यह औषधि के समान पवित्र हो। हमारे हिमालय के अंदर में औषधि, नेचुरल ब्लेसिंग फॉर योर स्वास्थ्य, सबसे सुंदर। जल तभी अमृत होगा जब वह प्रदूषण से मुक्त होगा। कभी कभी आपने सोचा है, इतने टूरिस्ट जाते हैं पहाड़ों के ऊपर में, प्लास्टिक वहां छोड़ के आ जाते हैं। जब बारिश होती है तो सबसे पहले प्रकृति उसी प्लास्टिक को धकेलते वो आपके गिफ्ट को वापस कर देते हैं। डजंट एप्रिशिएट वहां पर प्लास्टिक का प्रदूषण। बहुत जो गहरी बात ये है कि हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि हमारी जीवन रेखा है। आई थिंक दिस इज व्हाट वी गॉट टू अंडरस्टैंड वेरी डीप। अंत में मैं आप एक बार फिर हर एक आयोजक को, पूरी यूनिवर्सिटी को, एवरी गेस्ट हु इज कम टू भारत और उत्तराखंड में, हर एक आत्मा जो इसके साथ में जुड़ी है, कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्मों में अच्छा काम किया होगा कि इस जन्म में आपकी आत्मा को ब्रह्मांड और प्रकृति को ठीक करने का जो जिम्मा है वो आपको इस सेमिनार के थ्रू मिला। सो टेक इट एज अ गॉड्स ब्लेसिंग टू ईच वन ऑफ अस। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ईच वन ऑफ अस, कि हिमालय को बचाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बनाएं। हम संकल्प ले, निश्चय ले, रिसॉल्व ले, और जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, निश्चय कर अपनी जीत करो। विकास और सुरक्षा में संतुलन बनाए रखें। इकोनॉमी विदाउट इक्वालिटी, डेवलपमेंट विदाउट डिग्निटी, not dignity but dignity, dignity also but dignity. Development along with the ecology is very important for each one of us. हमें आती है, please share with the entire मानव। अंत में नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। Thank you, sir. We are deeply grateful for your inspiring words, my dear.
of what the nature wants to tell us, and also again for reminding us that the Himalayas are a true lifeline of the entire country. As you rightly said, in the spirit of Jai Shiva, this gathering. One of the reasons सर्वप्रथम मैं आप सबको आज हिमालयन दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस शुभ दिन के ऊपर में यूपीएस यूनिवर्सिटी ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक सेमिनार सम्मेलन का आयोजन किया है जो 3 दिन तक चलेगा। इसके अंदर में रिसर्च की जाएगी, शोध किया जाएगा कि किस प्रकार से जो सब चैलेंजेस हैं जिनके बारे में आपने जिक्र किया उनके ऊपर में कैसे सोच विचार हो। ऐसा लगता है कि जो ब्रह्मांड ने, जो प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया है पर्वतों के रूप में, हिमालय के रूप में, नदियों के, फॉरेस्ट, और जो सब हमको सब सिखाया है, जो भारत की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विद्या ने हमको हिमालय के साथ जोड़ा था और एक जीवन जीने का एक हमको एक तरीका सिखाया था। आज ऐसा लगता है कि एक कॉलिंग है और इसको बहुत सुंदर तरीके से हिमालयन कॉलिंग 2025 का शीर्षक दिया गया है कि नेचर क्या कह रहा है, पर्वत क्या कह रहे हैं, जो चुनौतियां पूरे विश्व के सामने में आ रही हैं, चाहे वो क्लाइमेट की हो, टेम्परेचर की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, और जिस प्रकार से हमने देखा है कि क्लाउड बर्स्ट और फ्लड्स वगैरह के चैलेंजेस हैं, इन सब में क्या मैसेज है, हमको किस प्रकार से नेचर से, क्लाइमेट से, एनवायरमेंट से, पर्वतों से, नदियों से, इन सब से जुड़ना पड़ेगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो यूपीएस यूनिवर्सिटी ने जब ये सेंटर शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि न जाने कितने स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, बट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आज की अमृत पीढ़ी है, जो आज के युवा हैं, दे ऑल आर इंटरेस्टेड टू गेट कनेक्टेड। जो हमारे भारत की, हमारे उत्तराखंड की जो पहचान, संस्कृति और आत्मा है कि हम किस प्रकार प्रकृति से जुड़े, उस टॉपिक के अंदर में किस प्रकार रिसर्च और शोध किया जाए, हमारी क्या रियलाइजेशन होनी चाहिए, हमको क्या रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा, हमको क्या रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। मुझे बहुत खुशी है कि इसके अंदर में 11 पद्म श्री पद्म विभूषण ने ज्वाइन किया है। इसका मतलब कि हमारे परिवार के जो पूर्वज हैं उनके दिल में भी क्या पीड़ा है नेचर को लेकर, उसको किस प्रकार से स्टडी करें। देयर आर 25 NGOs who are enjoying, और सबसे अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स हैव वॉलंटियर्ड कि जब वो यहाँ पे अध्ययन करेंगे तो दे विल गो टू द ग्राउंड, दे विल गेट कनेक्टेड टू द ग्राउंड एंड फाइंड आउट पूरी मानवता की। हमने तो देखा था कि कोविड के दौरान हमने क्या सबक सीखे, किस प्रकार ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा पूरा जो नेचर है, हमारी जो नदियां हैं वो पॉल्यूट ना हो, हमारे वायु एकदम शुद्ध होना चाहिए, हमारा जो भोजन है, औषधियां हैं, किस प्रकार से हमको उनके बारे में सोचना पड़ेगा। आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी, और पूरे मानवता की तरफ से मैं यूपीएससी को और हेल्थ सेंटर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने इतने इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर में 3 दिन का अध्ययन करके एंड देन यू विल शेयर जो भी आपकी लर्निंग्स होंगी, आपके संकल्प होंगे, आपके समाधान होंगे, दैट यू विल शेयर विद ईच वन ऑफ। धन्यवाद, जय हिंद। आपने अवैध कटान और देखेंगे तो नदी के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। ग्लेशियोलॉजी एक डायमेंशन हो सकता है, जियोमॉर्फोलॉजी दूसरा डायमेंशन हो सकता है, एलुवियल इकोनॉमी अलग डायमेंशन हो सकता है, उसके अंदर जो रिवराइन लाइफ है दैट कुड बी अनदर लाइफस्टाइल, माइक्रोबियल एक्टिविटी रिवर में दूसरा हो सकता है, रिवर की इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं एक नदी के। तो कैसे हम सारे डिसिप्लिन्स को एक साथ लाएं, सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इस रीजन में काम कर रहे हैं कैसे हम उन सबको साथ में लाएं, इंडस्ट्री जो काम कर रही है कैसे हम उसको भी इसका एक हिस्सा बनाएं और सारे लोग साथ मिल के जुड़ें और पॉलिसी मेकिंग में एक
अच्छा काम करने की कोशिश करें कि कैसे हम डाटा ड्रिवन एक जो लॉजिकल, रैशनल और रीजनेबल पॉलिसी हो वैसा बनाने में सरकार की भी हेल्प करें। तो ये एक उद्देश्य था कि सारे स्टेक होल्डर साथ में आए। कैन यूपीएस बिकम एन एंकर टू दिस? तो अभी तक हमने ऑलरेडी लगभग 1400 NGOs के साथ MOU साइन किए हैं। हर साल हमारे लगभग 6000 बच्चे जाके इन NGOs के साथ वॉलंटियरिंग काम करते हैं। पिछले साल हमने लगभग 2.5 लाख दिनों का वॉलंटियरिंग एक्टिविटी किया है एज अ कम्युनिटी।